Hi and a very warm welcome to 3.2 TV. I am Vishakha Thakur. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। Cryptocurrencies are trading higher as speculation mounts that John Ray is considering reviving FTX. Bitcoin has reclaimed the $20,970 level, while Ethereum has surged near $1,552. Shiba Inu, Gala, and other tokens were chased higher by investor activity. In other news, cryptocurrency exchange Coinbase announced on Monday that it is officially ceasing operations in Japan and will conduct a thorough review of its operations in the country. Moving on, 2022 के दो सबसे बड़े इंडस्ट्री कोलैप्सेस से नुकसान उठाने के बाद परेशान क्रिप्टोकरेंसी लेंडर जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल की मूल कंपनी जेनेसिस ग्लोबल होल्डको एलएलसी ने चैप्टर 11 बैंकरप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया है। जेनेसिस ग्लोबल होल्डको एलएलसी, जेनेसिस एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड और जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल एलएलसी द्वारा बैंकरप्सी कोर्ट में वॉलंटरी पिटीशंस सबमिट की है। डिजिटल करेंसी ग्रुप तीनों के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे में जेनेसिस ने जॉइंट केस एडमिनिस्ट्रेशन को प्रपोज किया है। रिपोर्ट के अनुसार जेमिनी के बंद किए गए अन्य प्रोग्राम से संबंध जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल के पास 100,000 से ज्यादा लेनदार है और देनदारियों और संपत्तियों में $1 बिलियन से $10 बिलियन है। उनकी दो अन्य कंपनियों की संपत्ति और देनदारियों का मूल्य रिस्पेक्टिवली $100 मिलियन और $500 मिलियन था। 19 जनवरी को जारी बैंकरप्सी फाइलिंग के अनुसार जेनेसिस पर अपने टॉप 50 लेनदारों का $3.5 बिलियन से ज्यादा का बकाया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जेमिनी, ट्रेडिंग बेहेमोथ, क्यूम्बलैंड, मिराना, मून अल्फा फाइनेंस और वैनेक का न्यू फाइनेंस इनकम फंड भी शामिल है। Moving on, the earn interest products, which is Nexo's case, took the form of crypto asset. Leading accounts were prohibited by the Californian DFPI and other US regulators. When the accusations were brought, Nexo had already stopped providing the accounts to American investors. The SEC and the North American Securities Administrators Association both declared 4 months later that their legal actions against the lender were over. Following the investigation, Nexo voluntarily decided to pay fines totaling $45 million. The $45 million in fines will be divided up among at least 18 different organizations. The largest, which comprises half of the total amount, will be paid out directly to the SEC. The NASA will oversee the distribution of the remaining $22.5 million to at least 17 different state security regulators. In a 9-part thread on Twitter, Nexo also reaffirmed the agreement. Moving on, माइक्रोसॉफ्ट ने एक डिफ्यूजन मॉडल डेवलप किया है जो ह्यूमन फेस की सिंगल 2 डायमेंशनल यानी 2D इमेज से 3 डायमेंशनल यानी 3D अवतार बना सकता है। डिफ्यूजन मॉडल को माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के रिसर्चर्स के एक ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया था। 3D अवतार का इस्तेमाल वर्चुअल रियलिटी यानी VR या ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR एक्सपीरियंस बनाने के लिए या गेमिंग या किसी इस्तेमाल के लिए व्यक्ति के लाइफ लाइक 3D रिप्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है। 3D अवतार डिफ्यूजन मॉडल एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पर बेस है। डिफ्यूजन मॉडल्स जनरेटिव मॉडल्स है, जिसका अर्थ यह है कि नया डेटा जनरेट कर सकते हैं जो ट्रेनिंग डेटा के समान है। एडीएम पहला डिफ्यूजन मॉडल है जो सिंगल 2D इमेज से रियलिस्टिक 3D अवतार बनाने में सक्षम है। हालांकि पास्ट में 2D इमेजेस से 3D इमेजेस बनाने के लिए डिफ्यूजन मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया है। AD Gaming, an initiative to develop the gaming and esports industry in Abu Dhabi, and AA Meta, a local metaverse and Web3 development company, have formed a new partnership to support the capital's gaming ecosystem. AA Meta will provide metaverse infrastructure as well as Web3 technology solutions for next-generation gaming. The metaverse and blockchain gaming enable players to interact in new, community-driven worlds while also providing businesses with new payment solutions to power new in-game economic models and innovative ways to deliver immersive experiences to audiences worldwide. According to an AD Gaming statement, AA Meta's partnership with AD Gaming aims to grow the local metaverse industry and provide job opportunities for UAE residents interested in a career in the sector. Moving on, बोर्ड ऐप यॉट क्लब यानी BAYC NFT कलेक्शन के पीछे कंपनी युगा लैब्स एक SEC इन्वेस्टिगेशन अपने मेल चिम अकाउंट का एक हैक और कई मुकदमों से निपट रही है। युगा लैब्स ने 18 जनवरी को एक चेतावनी जारी की थी
कि बड़े पैमाने पर डेटा ब्रीच ने उनके मेल चिप अकाउंट से समझौता किया था, जिसमें कस्टमर डेटा शामिल था और अनऑथोराइज्ड एक्सेस प्राप्त किया गया था। युगा ने लीक की गंभीरता को डाउन प्ले किया, यह तर्क देते हुए कि मेल चिप के पास कोई सबूत नहीं था कि अटैकर्स ने डेटा एक्सपोर्ट किया था। युगा के अनुसार किसी ने भी NFTs क्रिएट करने के लिए जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया। इसने यूजर्स को संवेदनशील जानकारी का अनुरोध करने वाली किसी भी अनसॉलिसिटेड ईमेल्स, अनएक्सपेक्टेड NFT मिंट्स या डायरेक्ट मैसेजेस से बचने की सलाह दी है। Moving on, Namaste Web3 was launched by Forbes India and CoinDCX. Namaste Web3, as the name implies, will touch on various stakeholders in the Web3 ecosystem and will help highlight the Indian market's potential to build and adopt Web3. Namaste Web3 will take the form of a series of educational roadshows across multiple cities beginning January 28. Through a steady increase in investment flows, a proliferation of startups, and a diverse pool of tech talent, India has already gained a competitive advantage over other countries in the blockchain and Web3 space. More importantly, there is a lot of enthusiasm among Indians who want to use these cutting-edge technologies. Namaste Web3 was born out of the ambition to build a bridge connecting the Indian masses with this third generation of the internet. The events will take place in cities across India including Bengaluru, Delhi, Mumbai, Hyderabad, Ahmedabad, Chennai, Jaipur, Pune and Kolkata, and will aim to bring together industry leaders, policymakers, key opinion leaders and influencers from sectors such as technology, banking, taxation and finance in general. Well, that's all in this bulletin. This is me, Vishaka Thakur, signing off. मैं संदीप पसारकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है वीकली रैप। Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishaka Thakur. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। Welcome to the weekly wrap. Cryptocurrencies ended in positive territory during the last 7 trading sessions, led by favorable news flows, which in turn helped generate renewed investors' interest in the digital currencies. Bitcoin recaptured $21,300 level, while Ethereum surged near $1,600. Tokens such as Shiba Inu, Gala, etc. were chased higher by investor activity. In another interesting news, crypto exchange Coinbase on Monday said it is officially halting operations in Japan and will conduct a complete review of its business in the country. Coinbase announced that it has made the difficult decision to completely review business in Japan and terminate transactions with existing customers. If interest rate increases are below the market expectations, then risk assets are likely to benefit and crypto prices will hence continue the uptrend. However, there is too much uncertainty for the time being, analysts believe. The news of the the Department of Justice announcement to escalate pressure on significant players in the crypto sphere have impacted crypto markets, analysts believe. तो संदीप जी, देखा जाए तो इस हफ्ते की शुरुआत से अभी तक बिटकॉइन जो है वो $21,000 के आसपास ही ट्रेड करता दिखा, और इस हफ्ते की शुरुआत में ये भी देखा गया कि जो स्काईब्रिज है उन्होंने कहा कि जो 30% स्टेक था उनका FTX में, उसे वो रीपरचेज करने वाला है इस साल के अंत तक, यानी कि 2023 के अंत तक। तो संदीप जी, और इसके साथ साथ FTX कंटेजन जो कहा जा रहा था कि 2023 में भी स्प्रेड होने वाला है, लेकिन फिर एकदम से जो FTX है वो अपने कुछ एसेट्स रिकवर कर लेता है, और उसके बाद एसेट्स रिकवर करने के बाद ये देखा गया कि जो करंट हेड हैं FTX के, जॉन जे रे 3, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी तरह से जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उनकी वो रिवाइव हो सके तो इस पाथ को वो ज़रूर फॉलो करना चाहेंगे और ऐसा ज़रूर करना चाहेंगे। विशाखा, इसे हम FTX का ब्रॉड इम्पैक्ट भी कह सकते हैं, पर साथ ही और एक इसमें डेवलपमेंट है, एक अपडेट ये भी है कि कॉइनबेस ने एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट की है कि उनके जापान के जो ऑपरेशंस है वो ऑपरेशंस को वो ऑफिशियली हॉल्ट करने वाले हैं। और एक बड़ा कंसर्न ये भी है कि वहाँ के जो इन्वेस्टर्स है उनके जो ट्रांजैक्शन है वो टर्मिनेट भी होंगे। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। 9 सितंबर को FTX वेंचर्स ने अल्टरनेटिव एसेट मैनेजर स्काईब्रिज में 30% हिस्सेदारी के लिए एक अनडिस्क्लोज फी का भुगतान किया।
वो भी नवंबर में FTX द्वारा बैंकरप्सी की घोषणा से कुछ ही महीने पहले। स्कैरामुच्ची ने 13 जनवरी को CNBC को बताया कि FTX की समस्याओं पर विचार करते हुए स्काई ब्रिज उस हिस्सेदारी को रिपर्चेस करने में कामयाब कर रहा है, लेकिन लेनदेन इस साल के फर्स्ट हाफ के अंत तक पूरा नहीं होगा। स्काई ब्रिज की वेबसाइट के अनुसार 30 सितंबर 2022 तक इसके मैनेजमेंट के तहत $2.2 बिलियन की एसेट थी, जिसमें लगभग $800 मिलियन का आंकड़ा डिजिटल एसेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट का था। तो FTX का जो डेवलपमेंट हमने देखा, जो ड्रामेटिक हमने जो एक्टिविटी देखी, उसमें एक अभी डेवलपमेंट सामने आई है कि जो स्कैरामुच्ची जो है FTX कोलैप्स से पहले 30% उसका जो स्टेक था उसके ऊपर उसने 30 फीस का भुगतान भी किया था। तो ये धीरे धीरे कुछ चीजें अभी सामने उभरती आ रही है, इन्वेस्टिगेशंस के दौरान भी हम इसे कह सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक पूरा ये एक पिक्चर के जैसे चल रहा है, पहले FTX का कोलैप्स होना, फिर धीरे धीरे जो लॉयर्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, जो सैम बैंकमैन-फ्रीड है वो गिल्टी नहीं है, और उसके साथ साथ फिर एसेट्स रिकवर करना, और अब एकदम से ये अपडेट्स जो सामने आ रहे हैं। तो इसके साथ जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो 30% स्टेक है स्काई ब्रिज का, वो इस साल के अंत तक यानी कि 2023 के अंत तक फिर से रीपर्चेज करने वाले हैं। और क्या क्या छुपा हुआ है वो धीरे धीरे सामने आ जाएगा। बिल्कुल। Moving on, the Iranian central bank has begun working with the Russian government to launch a new gold-backed cryptocurrency. Iran is collaborating with Russia to create a token for the Persian Gulf region that will be used as a payment method in international trade. According to Alexander Brazenkov, Executive Director of the Russian Association of Crypto Industry and Blockchain, the token will be issued as a gold-backed stablecoin. In cross-border transactions, the stablecoin aims to replace fiat currencies such as US dollar. The proposed cryptocurrency would operate in Russia's Astrakhan Special Economic Zone, which has begun to accept Iranian cargo shipments. The new measures would help Iran avoid global trade sanctions. तो यहाँ देखा जाए तो ईरान जो है वो कोऑपरेट कर रहा है रशियन गवर्नमेंट के साथ एक गोल्ड बैक स्टेबल कॉइन लाने के लिए। लेकिन संदीप जी, अगर हम थोड़ा पीछे चले और इसके बैकग्राउंड में देखें तो जो ईरान है और रशिया है, दोनों ने ही क्रिप्टो करेंसी को बैन किया था, जैसे कि बिटकॉइन या फिर स्टेबल कॉइन जो है जैसे कि टेथर, इन दोनों को ही बैन किया था इन्होंने अपनी कंट्रीज़ में। और अब एक यू टर्न ये लेते दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर एक गोल्ड बैक स्टेबल कॉइन ये लेकर आने वाले हैं, और जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में हेल्प करने वाला है फिएट करेंसी जैसे कि US डॉलर की जगह। स्टेबल कॉइन जैसे सभी को पता है, स्टेबल कॉइन स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसके पीछे कुछ अंडरलाइन एसेट्स होती है, जो कि ईरान गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है गोल्ड बैक टोकन्स, वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, उनके लिए बहुत ही सिक्योर्ड होगा, क्योंकि उसके पीछे गोल्ड होगा। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। स्कोडा ने वर्चुअली एक नए डायमेंशन में द स्कोडा वर्स की खोज की है। मेटावर्स में नया प्रोजेक्ट स्कोडा पर ई मोबिलिटी के बारे में जानकारी तक पहुंच को सरल और मजेदार बनाने के लिए एक यूनिक स्कोडा वर्ल्ड बना रही है, जिसमें लेटेस्ट स्कोडा इनियाक कॉप RS4 का टेस्ट ड्राइविंग भी शामिल है। स्कोडा वर्स में स्कोडा की NFT गैलरी, एंटरटेनिंग गेम्स और कस्टम स्कोडा अवतार के जरिए दूसरे विजिटर्स के साथ इंटरैक्ट करने जैसे एक्साइटिंग फीचर्स भी शामिल है। स्कोडा मेटावर्स एक्सपीरियंस एक वर्चुअल 3D वर्ल्ड है जिसे नेमेसिस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इस बीच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मेटावर्स के अगले 10 वर्षों के अंदर $multi-trillion मार्केट इंपैक्ट और बिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे। मेटावर्स जिसके 2024 तक $800 बिलियन के मार्केट में विकसित होने की उम्मीद है और वर्तमान में भारी इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर रहा है। तो मेटावर्स से टेक्नोलॉजी को आप देख रहे हो कुछ दिनों में इतनी बूस्ट कर चुकी है, बहुत ज्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है। जैसे हमने लास्ट टाइम एक स्टोरी कवर की थी मारुति सुजुकी नेक्सावर्स। हाँ, वो नेक्सावर्स में उन्होंने एंट्री की, खुद का मेटावर्स उन्होंने लॉन्च किया। तो उसको अभी वो कंटिन्यूटी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। स्कोडा भी इसमें पूरी तरह तो उतर चुके हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि यूजर्स के लिए ये बहुत ही ईजी होगा कि उन्हें कोई शोरूम में जाने की जरूरत नहीं है। मेटावर्स में आप खुद वहाँ पे इंटर कर सकते हो, घर बैठे इंटर कर सकते हो,
जो चाहिए वो कलर्स आप देख सकते हो, वहाँ पे आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, ये सब कुछ आप घर बैठे कर सकते हो जी। बहुत बड़ा कदम। तो स्कोडा के साथ साथ यहाँ मैं आपको बता दूं कि BMW ने भी मेटावर्स में एंटर कर लिया है, और इसके साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 में जितने भी लीडर्स थे उन्होंने मोस्टली यही कहा है कि जो मेटावर्स इंडस्ट्री है वो 2024 तक $800 बिलियन की मार्केट होने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और लगातार नए नए अपडेट्स आ रहे हैं मेटावर्स सेक्टर से। Moving on, former Reserve Bank of India Governor Raghuram Rajan said that the collapse in prices of digital assets over last year will allow investors to focus on the true value of this technology, the distributed ledger, and the smart contracts that can be built on them. The idea that somehow cryptos are going to maintain value while the fiat currencies collapse. That's nonsense, said Rajan to Reuters on the sidelines of World Economic Forum at Davos. The economist said that fiat currencies have won out in terms of which is more credible. Rajan's statement come in the backdrop of crypto market shrinking by $1.4 trillion in 2022, with Bitcoin losing 60% of its value. However, it has clocked a 26% gain in January, breaking above the $20,000 level. The former RBI governor had earlier cautioned investors about the shelf life of cryptocurrencies. तो संदीप जी, यहाँ रघुराम राजन जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं वो थोड़ा फेवर में नहीं दिखाई दे रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के, क्योंकि इसके पहले भी इन्होंने कहा है, जो कमेंट्स इनके थे वो ऐसे रहे हैं कि जो बिटकॉइन है वो जैसे 20% ऊपर जाता है फिर 20% ही नीचे आता है, तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है। और अगर हम एक तरफ रखें फियाट करेंसी और एक तरफ क्रिप्टो करेंसी को रखें तो जो फियाट करेंसी है उसका पलड़ा भारी रहेगा, या उसकी क्रेडिबिलिटी बेसिकली ज़्यादा है। तो विशाखा, हम देख सकते हैं ये आपने बात सही की, पर आने वाला जो 2023 का इस साल का जो बजट है उसमें सभी इन्वेस्टर्स और सभी एक्सचेंजेस वो भी नज़र गड़ाए हुए हैं कि आने वाला बजट में क्रिप्टो करेंसीज को लेकर क्या हलचल होने वाली है। क्या वो 30% टैक्स और 1% TDS कंटिन्यू होगा, क्या कंप्लीटली बैन होगा, या फिर कुछ अच्छी डेवलपमेंट सुनाई देगी। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। 2021 में रिपब्लिक ऑफ एल साल्वाडोर ने घोषणा की थी कि वो देश के एक्टिव वोल्केनोज द्वारा जनरेटेड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ बिटकॉइन माइनिंग को वित्त पोषित करने के लिए बिटकॉइन बॉन्ड्स के जरिए $1 बिलियन जुटाएगा, जिसे वोल्केनो बॉन्ड्स के रूप में भी जाना जाता है। साल्वाडोरियन लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिटकॉइन के अलावा अन्य डिजिटल एसेट जारी करने के लिए एक लॉ पास करने के बाद ऐसा लग रहा है कि दूर का सपना जल्द ही एक वास्तविकता बन सकता है। पिछले साल मार्च के शेड्यूल होने के बावजूद बेयर मार्केट की वजह से लेजिस्लेटिव एजेंडे को बार बार पोस्टपोन किया गया था। यह बिल, जिसे डिजिटल एसेट इश्यूएंस सिक्योरिटीज एक्ट कहा जाता है, डिजिटल एसेट्स जारी करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करता है और दूसरे नॉन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज को क्लासिफाई करता है, जैसे कि टोकनाइज सिक्योरिटीज, ऑल्टरनेटिव कॉइन्स और उनके वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो 2021 में जो वोल्केनो बॉन्ड्स के जरिए जो बिटकॉइन माइनिंग का जो कंसर्न था वो बेयर मार्केट की वजह से होल्ड था। उसके बाद 2 साल के बाद अब ये फिर से उभरा हुआ है। एक लॉ पास किया गया, एक बिल पास किया गया जिसमें कहा गया है कि कुछ डिजिटल एसेट को क्लासिफाई किया जा रहा है, जिसमें टोकनाइज एसेट्स है, कुछ VASPs भी है, जो कि एक अच्छा डेवलपमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो बिटकॉइन बॉन्ड है जिसे वोल्केनो बॉन्ड भी कहा जाता है, तो इसके साथ मिलकर ये $1 बिलियन जुटाने वाले थे, ऐसा इन्होंने पहले कहा। और अब एक तरह से देखा जाए तो इनका ये सपना जो है वो हकीकत बनता दिखाई देगा बहुत जल्द। Moving on, Bored Ape Yacht Club creator Yuga Labs blacklisted addresses related to Look Rare, SudoSwap, Blur and NFTX for not supporting royalties for its Sewer Pass NFT. In light of the ongoing NFT royalties debate, Yuga Labs has moved to ban transactions from marketplaces that do not support royalties for NFTs like its Sewer Pass. Sewer Pass is an NFT that grants its holders access to Yuga Labs' Dookie Dash interactive skill-based game. A closer look into the Sewer Pass contract shows that some addresses have been blacklisted. Simon Kosade disclosed in his Twitter thread that some of the blacklisted addresses include exchange contracts from Look Rare, SudoSwap, Blur and
NFTX। तो यहाँ देखा जाए संदीप जी, जो यूजर्स हैं उन्हें ये जो सुयोपास NFT है बोडे प्योर क्लब की, उसे बाय करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। जो लुक रे है, सूडो स्वैप है, ब्लर है या NFTX की हम बात किया जाए तो जितने भी यूजर्स हैं उन्हें ये इसे सुयोपास NFT जो है वो बाय करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ये अपडेट यूजर्स के लिए यहाँ है। और यूजर्स के लिए अच्छी बात भी है कि ओपन सी जो सभी के लिए ओपन है वो इसके माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। And with this, it's a wrap in today's weekly wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए 3.0 TV।